کی بھی ضرورت ہے اور پرہیز کی بھی ضرورت ہے. صحت کلی کے لیے دوا کی بھی ضرورت ہے اور پرہیز کی بھی ضرورت ہے. تو سیدھا راستہ جسے ہم نے صحت کلی مانا ہے، اس کے لیے دوا کیا ہے، پرہیز کیا ہے؟ تو غور کیجئے گا، اہدنا الصراط المستقیم اگر یہ صحت کلی ہے تو دوا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اور پرہیز ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ تو ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا ہے. ہمیں تو ابو بکر کا راستہ چاہیے، ہمیں تو عمر کا راستہ چاہیے، عثمان غنی کا راستہ چاہیے، مولا علی کا راستہ چاہیے، دیگر صحابہ کا راستہ چاہیے، غوث خواجہ کا راستہ چاہیے، ہمیں نیک بندوں کا راستہ چاہیے. اے مولا ہمیں انہی لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا کرم ہوا ہے، جن پر تیرا انعام ہوا ہے، جن پر تیرا فضل ہوا ہے. ہمیں وطبہ کا راستہ نہیں چاہیے، ہمیں شیبہ کا راستہ نہیں چاہیے، ابو جہل کا. یہ ولیوں کے تاجدار ہیں، پیرے پیرا میرے میرا شاہ جیلا ہے. آپ کہو مولانا خواجہ غریب نواز بھی اجویر میں، نظام الدین اولیاء بھی دلی میں، مخدوم کچوچا بھی کچوچا میں، مگر سرکار غوث پاک ولیوں کے سردار، ولیوں کے تاجدار. تو صرف ایک بات بتا کر کے میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا، ایک ہوتی ہے ذات اور ایک ہوتی ہے صفات. اور کیجئے گا بھائی، تھوڑی سی ہماری تقریر کاری ہوتی ہے، اگر آپ میموری ٹائٹ کریں گے تو بات پلے پڑے گی، ورنہ باؤنس کر کے بات باہر نکل جائے گی. اور کیجئے گا، ایک ہے ذات، ایک ہے صفات. ہمارا بولنا، ہمارا چلنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانا، یہ میری صفت ہے. صفت یہ میری، آپ لوگ کھا رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، یہ سب کی صفت ہے. صفات. اور جو اللہ نے آپ کو بنایا ہے مٹی سے سراپا انسان، یہ آپ کی ذات ہے. ذات، صفت اور ہے، ذات اور ہے. اور کیجئے گا، صفت اور ہے، ذات اور ہے، ذاتیں بڑی اور ہے، صفاتیں بڑی اور ہے. ذہن کو حاضر کیجئے گا، صفت اور ذات میں آپ سمجھ گئے. ہمارا چلنا، کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، یہ ہماری صفت ہے، اور ہم جو بنے ہوئے ہیں یہ ہماری ذات ہے. ذات اور صفت کا معاملہ جب سمجھ میں آ گیا تو غوث پاک کا مقام سمجھو ایمان مچل جائے گا. حضرت خواجہ غریب نواز آئے مظہر صفات نبی بن کر، حضرت خواجہ غریب نواز آئے مظہر صفات نبی بن کر، حضرت نظام الدین اولیاء آئے مظہر صفات نبی بن کر، حضرت مخدوم سمنا آئے مظہر صفات نبی بن کر، حضرت شعیب اولیاء آئے مظہر صفات نبی بن کر، حضرت مخدوم کچوچا آئے مظہر صفات نبی بن کر. جتنے ولی آئے سب مظہر صفات نبی بن کر، مگر جب غوث پاک آئے تو صرف مظہر صفات نبی نہیں بلکہ مظہر ذات نبی بن کر آئے. بے شک سبحان اللہ. مظہر ذات نبی بن کر آئے. جو نبی کی ذات کا پرتو ہو، جو نبی کی ذات کا مظہر ہو، اس کے مقام کا کیا کہنا، اس کی بلندی کا کیا کہنا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے یا رسول اللہ وہاں کیا جود، وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا. ذرا تڑپ کے بولو یار سبحان اللہ. یا سبحان اللہ. یا رسول اللہ وہاں کیا جود، وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا. اور اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے وہ ہے کیسا تیرا. یا رسول اللہ سر بھلا کیا کوئی جانے وہ ہے کیسا تیرا. اور اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، وہ ہے تلوا
नाम है गौसे पाक आप समझ गए होंगे। हजरात ज्यादा तफसील में ना पढ़ के सिर्फ इतना मैं बताना चाहूंगा कि अल्लाह के वलियों की हुकूमत ये अनासिर अरबा पर है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के वलियों की हुकूमत ये अनासिर अरबा पर है। हाँ, ये और बात रही कि खुदा की ताकत ये जाती है, गौसे पाक की ताकत ये अताई बेशक गौसे पाक की ताकत ये अताई है, खुदा ने अता किया है। आप भी अगर परहेजगार हो जाए, नेकूकार हो जाए तो अल्लाह आपको भी ताकत अता कर देगा। बोलो है कि नहीं? गौसे पाक की ताकत अताई है, ख्वाजा गरीब नवाज की ताकत अताई है, मखदूम पाक की ताकत अताई है, जितने वली हैं सबकी ताकत अताई है, मगर खुदा की ताकत जाती है। अल्लाह की ताकत जाती है। अपने फजलो करम से अपने नेक बंदों को खुदा ने ताकत अता किया है। अब गौसे पाक की ताकत कहाँ तक? एक वाकया बयान करूंगा, एक करामत आपका ईमान मचल जाएगा। खुदा की कसम, गौसे पाक की हुकूमत सिर्फ इंसानों ही पर नहीं बल्कि गौसे पाक की हुकूमत जिन्नातों पर भी है। सुभान अल्लाह। गौसे पाक की हुकूमत जिन्नातों पर भी है। हो जाए कोई अगर आसेफ सदा गौसे पाक का दिल से नाम लिया जाए, शरीर जिन जिस्म छोड़ करके भाग जाएगा, शरीर जिन जिस्म छोड़ करके भाग जाएगा। और जिस घर में, जिस आबादी में, जिस संसदा में, जिस जगह में अगर बगदाद के राजा का नाम लिया जाए, खुदा की कसम कभी शैतान दखल अंदाजी नहीं कर सकता है, शैतान कभी उसमें शरारत नहीं कर सकता है। आप कहो कैसे? तो सुनो, बहिजतुल असरार का वाकया है, करामत मौजूद है। सीरत गौसुस सकलैन 95 सफा है, खोल करके देख लेना। हजरत अबू सईद की बेटी है, अकलौती बेटी है, रात की तन्हाई होती है, सन्नाटे का आलम होता है, छत पे चढ़ती है, किसी काम से अचानक वहीं से गायब हो जाती है। कहाँ हो जाती है? थोड़े लोग परेशान है कि मौलवी जल्दी बंद करे, भागी है कि नहीं? ऐसा तो कोई मामला नहीं होगा। हम जबरदस्ती नहीं तकरीर करते हैं। एक मौलाना साहब जबरदस्ती तकरीर करते थे, आंख बंद कर लेते थे और बोलते रह जाते थे। तो जो आंख बंद कर लेगा तो कोई सील मुरव्वत रह जाएगी। हम आंख खोल करके तकरीर करते हैं कि कुछ लोग बेचारे शबनम के नीचे शामियाने के बाहर बैठे हैं, कुछ लोग अंदर बैठे हैं, हम ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। वो मौलाना साहब की आदत थी, आंख बंद कर लेते थे और तकरीर करते रहते थे। एक मर्तबा बोल रहे थे, 1 घंटा तकरीर किए, 2 घंटा तकरीर किए, 3 घंटा आंख बंद है तो क्या देखें सामने। उनकी आदत थी जब 3 घंटा पूरा होने को रह गया तो आंख खुली, क्या देखा? जितने सामने थे खाना खा के गायब। यज्ञ आदमी सामने बैठा हुआ है। तो मौलाना साहब ने कहा, यार तुम बड़े होशियार हो, समझदार हो, तुम ही बैठे रह गए, जितने बेवकूफ नादान थे सब उठ के चले गए। तो उस साहब ने जवाब दिया, कहा मौलाना साहब तोहरे तकरीरी एक नाते हम ना ही बैठे रहे, जो कुर्सी बैठ के बोले थे वो हमार हो ही नाते बैठे रहे। तो जितने थे सब रफू चक्कर हो गए। वो मैटर यहाँ नहीं, बस थोड़ी देर में आप हजरात के सामने गौसे पाक का थंबर और अल्लाह के वलियों की ताकत बयान करके गुजर जाना चाहूंगा। हजरत अबू सईद की बेटी है, रात की तन्हाई है, सन्नाटे का आलम है, आधी रात को छत पे चढ़ती है, किसी काम से अचानक उसे अगवा कर लिया जाता है, वो गायब हो जाया करती है। अब उन्होंने कमरे कमरे ढूंढा, उन्होंने बरामदे में तलाश किया, अड़ोस पड़ोस के घर को देखा, कहीं बेटी का नामो निशान नहीं, कहीं बेटी का नाम नहीं, कहीं पता नहीं चल रहा है। सुबह की सफेदी नमूदार हो जाया करती है। भाइयों से मालूम किया, पड़ोसियों से मालूम किया, यारों से मालूम किया, मगर अबू सईद की बेटी का कोई पता नहीं लग रहा है। अचानक अबू सईद के दिल ने फैसला दिया, ए अबू सईद अड़ोसी पड़ोसी के चक्कर में क्यों पड़े हो? अरे जिस शहर में हो उसी शहर में बगदाद का राजा है। सुभान अल्लाह। उसी शहर में बगदाद का राजा है, उसी शहर में वलियों का सरदार है। चलो बारका है गौस में हाजिरी दो, वहीं पे मसला हल हो जाएगा, मामला वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। अबू सईद सुबह भागे
दौड़े, बारगाह गौसियत में हाजिरी देते हैं, अर्ज करते हैं हुजूर वाला रात का आलम था, हमारी बेटी छत पे चढ़ी, वहीं से अचानक गायब हो गई। हमने घर घर के कोने कोने को तलाश किया, हमने पड़ोसियों के घरों को देखा, हमने दोस्तों अहबाब से मालूम किया, मगर बेटी का कोई नामो निशान नहीं, कोई पता नहीं चला। सैयदना सरकार गौसे पाक ने ये नहीं कहा कि जाके ऐलान कर दो, जाके डुबकी दे दो, जाके लोगों मुखिया से कह दो ऐलान कर दे मोहल्ले में, हो सकता है बेटी मिल जाए। गौसे पाक ने ये नहीं फरमाया, बल्कि कहा ए अबू सईद घबराओ नहीं, तुम्हारी बेटी मिलेगी। और कहाँ मिलेगी? एक तपस्या करना पड़ेगा, कुछ परेशानियां उठानी पड़ेगी। हज़रत अबू सईद ने कहा ठीक है, सारी परेशानियों को हम बर्दाश्त करेंगे। जिसकी अकलौती बेटी गायब हो जाए, जिसका अकलौता बेटा गायब हो जाए, भला बताओ वो परेशानी बर्दाश्त नहीं कर सकता है? अबू सईद ने कहा हुजूरे वाला हम सारी परेशानियों को बर्दाश्त करेंगे। कहा सुनो, इसी इराक की धरती पर, इसी बगदाद की सरजमीन पर करख की एक वादी है। क्या है? करख की एक वादी है, 5 पहाड़ की चोटियां हैं। कितना? 5 पहाड़ की चोटियां हैं। पहले पहाड़ को पार करना पड़ेगा, दूसरे पहाड़ को पार करना पड़ेगा, तीसरे पहाड़ को पार करना पड़ेगा, चौथे पहाड़ को पार करना पड़ेगा। 5वें पहाड़ की चोटी पर जब पहुंचोगे, रात का वक्त अगर आ गया तो एक दायरा, एक लकीर खींच करके बैठ जाना, मगर जब लकीर खींचना तो पढ़ लेना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला नियत अब्दुल कादिर। जब लकीर खींचना तो पढ़ लेना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला नियत अब्दुल कादिर। लकीर खींच करके बैठ जाना। रात में अलग अलग सूरत में आएंगे शयातीन, अलग अलग सूरत में अजिन्ना आएंगे, डरवाएंगे, मगर ये अबू सईद दायरा खींच करके बैठ जाओगे, कोई शैतान शरारत नहीं कर सकता है, कोई जिन्ना शरारत नहीं कर सकता है। क्यों? इसलिए कि आप जब दायरा खींचेंगे, पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला नियत अब्दुल कादिर, तो उस दायरे के अंदर किसी की हिम्मत नहीं पड़ सकती है कि कोई अपना कदम डाल दे, कोई तकलीफ पहुंचा दे। हज़रात गौसे पाक का चाहने वाला, गौसे पाक का मानने वाला, खुदा की कसम अगर मशरिक में हो, परेशानी में आ जाए, वहीं से पुकारे तो गौसे पाक वहीं से हमारी मदद करते हुए नजर आएंगे, बर्दाश्त से हमारी मदद करते हुए नजर आएंगे। जरा पावर देखो और अपने दिल में गौसे पाक की मोहब्बत पैदा करो, ईमान ताजा हो जाएगा। हज़रत अबू सईद फरमाने गौसे पाक के मुताबिक पहले पहाड़ को पार करते हैं, दूसरे पहाड़ को पार करते हैं, तीसरे पहाड़ को पार करते हैं। एक करख की वादी है, पथरीली जमीन है। चौथे पहाड़ को पार करते हैं, 5वें पहाड़ की चोटी पर जाकर के बैठ जाया करते हैं। एक दायरा खींच लिया करते हैं, दायरा खींचते वक्त पढ़ लिया करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला नियत अब्दुल कादिर। दायरा खींच करके बैठ जाया करते हैं। आधी रात आती है, अजिन्ना आते हैं, शरीर शयातीन आते हैं, अलग अलग सूरत में, अलग अलग अंदाज में आते हैं, मगर किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है जो दायरे के अंदर दाखिल हो जाए। आने वाला अगर अबू सईद है तो भेजने वाला वलियों का सरदार, भेजने वाला वलियों का सरदार है, शहंशाह बगदाद है। हज़रत अबू सईद दायरा खींच करके बैठ जाते हैं। आते हैं अजिन्ना, आते हैं शयातीन, अलग अलग सूरत में, मगर डर किस बात का है? भेजा है शहंशाह बगदाद ने, कौन तकलीफ पहुंचा सकता है? और सरकारे गौसे पाक से पूछा था अबू सईद ने, ए सरकारे गौसे पाक, पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जिला, जब रात का वक्त होगा, अजिन्ना अलग अलग सूरत में आएंगे, शयातीन अलग अलग अंदाज में आएंगे, मगर सुबह क्या होगा? सुबह क्या होगा? तो सरकारे गौसे पाक ने फरमाया था कि सुबह जिन्नातों का बादशाह हजारों के लश्कर के साथ आएगा। सुबह जिन्नातों का लश्कर हजारों के साथ में आएगा और आपसे पूछेगा, जब पूछेगा
तो सवाल का जवाब दे देना, सवाल का जवाब दे देना, कोई और नहीं पूछेगा, जिन्नातों का बादशाह ही सवाल करेगा। कहा ठीक है। जब सूरज निकलता है, जिन्नातों का बादशाह 1000 कई हजार लश्कर लेकर के अबू सईद की बारगाह में हाजिरी देता है। पूछा कैसे आए हुए हो, भेजा किसने है? अबू सईद ने कहा आने वाला अबू सईद है और भेजने वाला सरकारे गौसे पाक है, उन्हीं का चाहने वाला हूँ, उन्हीं का मैं मुरीद हूँ, उन्हीं का मुतकिद हूँ। बादशाह ने कहा कैसे आए हुए हो, तुम्हारी खर्च ख्वाहिश क्या है, तुम्हारी मंशा क्या है, तुम्हारी चाहत क्या है? तो कहा हमारी बेटी रात को छत पर चढ़ी थी, वहीं से गायब हो गई, पता नहीं कहाँ मेरी बेटी चली गई। मैंने पड़ोसियों से पूछा, मैंने दोस्तों से पूछा, मैंने अपने घरों को तलाश किया, बेटी कहीं ना मिली। गौसे पाक ने निशानदेही फरमाई कि करख की वादी में जाकर के 5वीं पहाड़ की चोटी पर बैठ जाना, वहीं तुम्हारी बेटी मिल जाएगी। पता चला कि बगदाद की धरती से पहाड़ की 5वीं चोटी पर हजरत गौसे पाक देख रहे थे। सुबह हजरत गौसे पाक देख रहे थे, और क्यों ना निगाहे गौस देखे, खुद फरमाते हैं नजर तो इला बेला दिल्लाहे जवान। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये आयरे खैरे की बोली नहीं है, जबान मेरी है, फरमान गौसे पाक का है। फरमाते हैं नजर तो इला बेला दिल्लाहे जवान कहर दलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। पूरी दुनिया को मैं ऐसे देख रहा हूँ जैसे हाथ की हथेली पर राई का दाना। जरूर जरूर